ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इन्होंने बोलने का मौका दिया है। मैं इस सदन में अपनी बात रखने के लिए आया हूं। ए बजट इज नॉट merely a statement of moral document, it reveals the priorities of the government, directions of the government, and directions of the governors, and the sincerity with which the public promises are translated into outcomes. Sir, we are the watchdogs of public money. Sir, we are auditors of the government claims. Sir, we on this side of house do not approach the budget with a prejudice, with a view to oppose it, but to scrutinize with responsibility. Sir, every rupee mentioned in the budget belongs to the public. Every allocation carries the hope of the public. Sir, therefore, we examine figures, question assumptions, and highlight gaps. It is not obstruction, it is obligation of the opposition. Sir, throughout the political part of the speech on the budget, I never found even a single person from the treasury benches speaking on the budget provisions. They have not even highlighted whatever provisions have been made by the Honorable Chief Minister in the budget. They have failed to even project those projections. And before I start, it is a very tragic situation. Everybody spoke about Article 370. It is a dead horse. You can flog it for the times together. It is not going to come back. First thing. Second is, it is very painful and surprising that nobody from the treasury spoke about any sense of gratitude to the Prime Minister for the benevolent support he made to the duty of the state. Sir, the ground movement provided by the current central government for all the infrastructure works, for all the medical colleges, for all the AIIMS, IITs, IIMs, and for everything right from PMGSY roads to all things, nobody has expressed any sort of gratitude. Sir, I would pay my sincere thanks to Colonel MLA, who had the courage to say in the assembly that he thanks Adaniya Modi ji, Adaniya Amit Shah ji for 10,500 crore rupees of work which we have sanctioned in the Kashmir region. He has the courage, and he has the courage to say that my grandfather rejected the concept of plebiscite. He told in the assembly, it is held on record. I hope that others would have followed suit, but they have not learnt anything. Sir, before integrating the budget, I would also highlight the financial support given by the central government to the state. Sir, before that, I also heard many of the MLAs were criticizing late Shri GM Sadiq ji for getting the process of initiating the integration of the state with the rest of the country. Now, I have very one simple question to ask to these fellows. अगर आपको लगता था कि स्वर्गीय जीएम सादिक साहब ने कोई गलती की है, तो आपको 75वें पावर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। जो आपने जो अकार्ड किया वो तो उसी टर्म पे किया जिस टर्म पे उन्होंने किया था। फिर उसके बाद में आपको अकार्ड में एक तलाश थी कि अगर कोई सेंट्रल लॉ जो जहां एक्सटेंड हुआ है विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द स्टेट, उसको आप रिपील कर सकते थे। बट द कमेटी हेडेड बाय जस्टिस डी ठाकुर, it has recommended, I don't find even a single law which is not beneficial for the state. So all those central laws which were extended but remain in place. Sir, I would like to start. Now I would come straight to set the record straight in the house. जहां पर कहा गया कि हमारी फिस्कल ऑटोनॉमी जो थी वो हमारे से छीनी गई जब जीएसटी लाया गया। हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब उस टाइम पे अपोजिशन में थे
उस वक्त जो सरकार थी उन्होंने जो जीएसटी के ऊपर जो फैसला लिया, उस फैसले के लिए एक कमेटी बनी थी जीएसटी की, जिसमें हमारे आदरणीय स्पीकर साहब को भी बुलाया गया, मैं भी इसका मेंबर था। उस वक्त इन्होंने कहा कि हम अपवर्ड डेवल्यूशन ऑफ फंड्स करेंगे, बट दे कुड नॉट प्रेजेंट द थिंग के व्हाट दे वांट, बिकॉज क्रिएटिंग ए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर फॉर collecting GST would have been an uphill task. It would have taken years together, since the central government has taken about 13 years for creating that infrastructure. तो इन्होंने कहा 1 सितंबर को सब जगह पे लगा, हमारे में 7 को लगा। और जहां तक इसका तल्लक है कि जीएसटी का, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, इट इज नॉट ए ओरिजिन बेस्ड टैक्स। और स्टेट बेनिफिट्स फ्रॉम इट because our state is a consumption state. The states who lost from GST, they are Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka, Gujarat. They have lost because they are manufacturing states. So sir, there was no loss. But इधर में सब लोगों ने कहा जीएसटी का पैसा सारा वो लगे। इनको जब पता होना चाहिए कि 50% जीएसटी का SCST वो स्टेट को डायरेक्ट जाता है, और जो IGST जो सेंट्रल कलेक्ट करता है, इनकम टैक्स की कलेक्शन करता है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट करता है, वो एक फाइनेंस कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो उसको डिसाइड करता है कि सेंट्रल जितनी कलेक्शन हुई है उसमें कितना % दिया जाए। और साथ मैं आपको ये हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, जब ये पिछली बार चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त सेंट्रल डेवल्यूशन 31% थी ऑफ द टोटल कलेक्शन, और आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में वो कलेक्शन जो थी वो 41% हुई, वो 42% रिकमेंडेड थी, 41% हुई, डेवल्यूशन बढ़ी। उसके बाद में इन्होंने कहा कि ये जो अगला फाइनेंस कमीशन आया तो उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी स्टेट को पहले ये सुन लें 1.55 मिलता था % ऑफ द टोटल डेवल्यूशन, और जो 14 फाइनेंस कमीशन आया उसने 1.854% आपको दिया। ये मोदी जी की गवर्नमेंट में हुआ। उसके बाद चलिए आप बोलते हैं कि आपका पैसा वहां, ये हमारे डिप्टी सीएम साहब भी एक दिन बोल रहे थे कि स्टेट होती तो मैं आपको कुछ देता, मेरे पास में ड्यूटी है, मैं क्या दूं। उनको ये पता नहीं है, फाइनेंस को वो बिल्कुल भी नहीं जानते। अगर आज 1526 करोड़ जो है, 15,26,000 करोड़ आपकी सेंट्रल डेवल्यूशन है, अगर उसको 1.854 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके हिस्से में कुल 28 करोड़ रुपया आता है, 28 करोड़ रुपया, और आपको मिला कितना है 42.3 आपको मिला है, इतने 1000 करोड़ आपको मिला है। आप बताइए 14, और इसमें पुलिस का 10,000 करोड़ रुपए का बजट जो 28,000 करोड़ में शामिल होना था, वो आपका 28,000 करोड़ के बजट में वो शामिल नहीं है। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं, इस मिसकंसेप्शन को पूरे हाउस से दूर कीजिए कि आपको कोई पैसा कम मिला है। और मैं लास्ट ईयर की स्पीच से, आदरणीय सीएम साहब की स्पीच से कोट करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि सेंटर ने मुझे लिबरली सपोर्ट किया और 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए। ये उनकी बजट स्पीच में है। इफ समबडी वांट्स टू रीड द बजट स्पीच, आई हैव गॉट द बजट स्पीच ऑफ द लास्ट ईयर। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पैसा जो था, जो आपको अभी आ रहा है, इस पैसे में जो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स है, जैसे पहले आती थी अभी भी वो आएगी जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड लोकल बॉडीज होंगी। आप घड़ी की तरफ मत देखिए सर, मैं आपको मैं देख रहा हूँ सर, पूरे एक बजट होता है। तो सर इसमें मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ, पूरे हाउस से इस मिस इंप्रेशन को इम्प्रूव कीजिए, इसको हटाइए कि सेंटर ने आपको कम पैसा दिया। अगर आज आप स्टेट होते तो आपका जो राइट था वो 28,000 करोड़ में था, उसमें आपकी पुलिस भी शामिल थी। जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसके अंदर में भी सेंट्रल डेवल्यूशन के बाद में मैं पिछला बजट भी लाया हूं 18 का, उसमें आपको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स मिलती थी, उसके बाद में पीएलडीपी का पैसा मिलता था, आज भी वो मिल रहा है आपको। जो सेंट्रल की जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उनका आर्किटेक्चर, उनका हर चीज सेम है।
जो सेंटर की ग्रांट स्टेट्स को आएंगी, उनका आर्किटेक्चर, उनकी जो डेवल्यूशन है वो सेम रही है, इसमें कोई घाटा नहीं हुआ। एक ये बात सर, मेरे एक बड़े काबिल दोस्त है, मैं बड़ा रिकॉर्ड करता हूँ, वहीद पराजी। Politically he is a very sound person, but he seems to be totally ignorant about the finances. He should not have spoken about such thing. मेरे को अफसोस हुआ, आप इस हाउस के अंदर में आकर अपनी इग्नोरेंस को दिखा रहे हैं, आप मिस इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? साथ की कोई अडवाणी और या कोई अडानी नहीं दे रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने लास्ट ईयर की फाइनेंस की बजट की स्पीच की, चूंकि मेरे को बजट में बोलने का मौका नहीं मिला था, सीएम साहब को जल्दी जाना था, तो मैंने उस वक्त बताया था कि पीएम गति शक्ति एक प्रोग्राम है, उसका अगर मास्टर प्लान के अंदर में ये फिट किया हुआ है उन्होंने शासकी को, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इंटेंसिव जॉब, 50 साल तक आपको पैसा नहीं देना है। आज जो 100 रुपया कीमत है, 50 साल बाद उसकी 1 रुपया रह गई होगी, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। वो बोलता है नवाज ठीक था। अरे भाई, इतने मूर्खों वाली बात करने के लिए आपको हाउस में नहीं आना चाहिए था। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, पोलिटिकली इज अ वेरी साउंड मैन। He should not have come to the house and spread the misinformation. Whatever Chief Minister has done, he has taken a right step. मैं उनके पास इनके ऑफिस में गया था, मैं इनके ऑफिस में गया था। इन्होंने मुझे कहा था, मैंने इनके ऑफिस में मिला तो इन्होंने कहा कि ये ड्यूटी को नहीं मिलता है। मैंने कहा सर आप जाइए, सेंटर से डिमांड कीजिए, वो आपको देंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट एड इज बीइंग प्रोवाइडेड लिबरली। एंड इन कश्मीर अगर ये कोई आग फैला दी गई कि अडानी ने हमारे को जो है वो बंधक बना लेना है, हमारे को गुलाम बना लेना है, तो इस मिसकंसेप्शन को इस हाउस से दूर कर दीजिए। वो मेरे फ्रेंड इधर नहीं है, मैं उनका बड़ा रिकॉर्ड करता हूँ। सर नाउ आई विल कम, सर आई विल नॉट dwell on old promises because made in the manifesto of Jammu and Kashmir Nation Government, because the Honorable Chief Minister has himself acknowledged that announcing such far-fetched commitment was a grave mistake. I will not comment on the same. Therefore, I will move directly to the hard arithmetic and examine the actual numbers presented in the budget. Sir, I will come to the revenue sheets. Sir, जो आपका जीडीपी, जो आपका जो ग्राउंड जो है, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है, वो बता रहा है 8.89% आपकी जीडीपी बढ़ रही है। सर अगर ये जीडीपी बढ़ रही है तो हमारे रेवेन्यू सीट्स, हमारे टैक्सेस क्यों फॉल कर रहे हैं? सर दिस इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ सम इकोनॉमिस्ट कि अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है, it is not translating into the receipts of the government, revenue receipts of the government. And the formula is, I can quote 10 states जहां पर जितने % जीडीपी बढ़ती है, वन ग्राउंड का परसेंटेज का 1 times to 1.6 times तक उधर का टैक्सेस बढ़ते हैं, उधर के आउट सोर्सेज बढ़ते हैं। बट हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ पूरी गिरावट हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो आपने जो टैक्स कट किया है, जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, वो 13,521 करोड़ है 8 महीने के अंदर। और अगर इसको मैं कंपेयर करता हूँ पिछली बारी के साथ में, तो ये आपका जो है जो 24-25 का था उससे भी कम आ रहा है। बट इट मीन्स आइदर द फिगर्स ऑफ जीडीपी आर नॉट ट्रू, or there is a strong evasion of taxes in the state, which these leakages need to be plugged, or otherwise this cannot happen. Two things cannot happen in the same time. Sir, or I can tell you in very brief, non-tax revenue जो है वो हमारे 12,104 से 11,000 करोड़ पे आ गए। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन जो है 1900 करोड़ से लेकर 1100 करोड़ पे आ गई। और सेल्स और ट्रेड के ऊपर में जो टैक्स है वो 2500 करोड़ से कम होकर 2100 करोड़ आ गया। सर, व्हाई द गवर्नमेंट itself is forecasting a slowdown in its own tax and non-tax stream? Are you considering that the economic activity, property transaction and consumption are weakening in the revised
estimated figures initiated and now we corrected quietly. सर आपके जो इसमें आपने एक पैसे आपने पिछले वाली के बजट में डाले थे, एक हेड बनाया था आपने ARM पब्लिक, कुछ उसमें लिखा था, फिर बाद में क्रिप्स लिखा था. क्रिप्स इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच द मनी इज अपलोडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. बट सर इसमें 7,453 crores have been taken in this count. Now this amount has been taken away very quietly by the government. कि ये अमाउंट कहाँ गया, कैसे किसने डाला, और ये गिमिकरी क्यों की. ये बजट के अंदर में गिमिकरी जो है ये ठीक नहीं है सर. ये बजट में गिमिकरी थी क्योंकि ये इसका ये अमाउंट कम हो सकता था, पर ये बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता था. ये क्यों खत्म हुआ, ये कौन से रिसोर्सेज थे, कौन से वो अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज थे जहां से इनको पैसा आना था. सर अभी आप 25 और 26 की मैं थोड़ी सी फिगर्स को मैं इधर रिपीट करूंगा. आपकी रेवेन्यू शीट में कमी आई है 9,152 करोड़. आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो इंस्टेंट बढ़ गया 1,136 करोड़. कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कम हो गया है रिवाइज फिगर में 2,070 करोड़ रुपए का. और टोटल जो आपका फिस्कल डेफिसिट है जो आपने प्रोजेक्ट किया था 2 पॉइंट समथिंग का, that has risen by 26%. This is a very alarming state. What exactly this drastically coming down means? A revenue is fell mainly due to own revenue collapsing versus budgetary estimates. Own revenues जो थे वो आपके इतने कम हुए सर. इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इसमें कम हुआ है. अब मैं क्योंकि टाइम मेरे पास में ज्यादा नहीं होगा तो मैं सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये जो कम होना चाहिए था ये स्टेट जो बढ़ गया डिस्पाइट रेवेन्यू सीट फॉलिंग. जिस स्टेट का रेवेन्यू सीट फॉल करती है उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया जाता है तो ऑस्टेरिटी मेजर्स सर उसको कम नहीं किया गया. इसमें एक अदर्स का है, इसमें मैं पूरे हाउस को बताना चाहूंगा. अदर्स के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पिछले साल का जो इससे पिछले साल का एक्चुअल खर्चा आया है वो लगभग 3300 करोड़ है और उसको इन्फ्लेट करके इसको बढ़ाकर लगभग 7,000 करोड़ कर दिया गया. दिस इज द एरिया which is not a committed expenditure. Committed expenditure is salaries, pensions, gratuity, analytics. But this is not a committed expenditure. Where you could have compressed some of it. You could have compressed and contracted your extravagant savings. But nobody has done it. आप देखिए एक साल पहले में आपका 3300 कुछ करोड़ रुपया जो आपका फिगर्स आ रही हैं वो बढ़कर, इसका मतलब है कि हमने कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये क्यों बढ़ रही है. मैं ये फिगर्स कोट करना चाहूंगा. सर ये अदर्स का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये 24-25 के एक्चुअल सर 24-25 के एक्चुअल है सर ये 3954 करोड़ रुपया है और ये बढ़कर पिछले साल में 9,451. बाय दिस एक्सपेंडिचर वाज जो आपके निर्भर है सर जो कैपिटल सीट इंक्रीज हुई है उसमें शासकीय का योगदान है, असेट मोनेटाइजेशन का. बट मेरे को लगता नहीं है कि ये सेट मोनेटाइजेशन इस साल में होने वाली है. वो भी आपका कैपिटल सीट कम होगी, इसमें एनपीएस डाला गया वो शायद आपके पास आ सकता है. सर द गवर्नमेंट कुड नॉट मीट इट्स रेवेन्यू सीट्स एंड हैड टू लीन ऑन कैपिटल सीट्स. बोरोइंग कैपिटल सीट मींस बोरोइंग एंड बोरोइंग फॉर द सेक ऑफ कंजप्शन इज नॉट ए गुड साइन. इट इज ओवरक्राउडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर. सर अब मैं कुछ फिगर मैं दूंगा जो इकोनॉमिक सेक्टर में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कमी हुई है. हाउसिंग में सर पिछले साल के रिवाइज बजट में 744 करोड़ की कमी हुई और बाद में उसको इस बार में ठीक किया गया. लेट अस होप कि वो शायद कितनी आगे आए मेरे को पता नहीं है. पब्लिक वर्क्स में पीडब्ल्यूडी में 334 करोड़ की कटिंग की गई. अब उसको दोबारा इस बजट में करेक्ट किया गया है. मैं नहीं समझता कि वो कितनी आएगी कितनी नहीं, और ये पिछली बार के रिवाइज बजट में कम किया गया. इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ड्रास्टिक डिक्रीज 279 करोड़ 280 करोड़ ये डिक्रीज किया गया.
अब जो इंक्रीज की गई है पिछले के बरस एक कुल 137 की है, विच इज नॉट कमेंसुरेटिंग इवन विद द प्रीवियस ईयर बजट एस्टिमेट्स। एग्रीकल्चर